حضرت مفتی صاحب یہ آج کل بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر ضروری گفتگو کرتے ہیں. آن لائن ٹریڈنگ لوگ فون کر لیتے ہیں. ادھر دیکھو جی، آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواب یہ اس کی 50 لاکھ قسمیں ہیں، تو ہم آپ کو کون سی قسم کا بتائیں؟ کیا بتائیں آپ کو؟ آپ واضح کریں. ایک ایمیزون ہے، ڈراپ شپنگ ہے، وہ تو ناجائز ہے بغیر ان کے NOC کے، ان کی شرائط کے. بی فار یو حرام ہے، بزنس حرام ہے، اسکائی بز حرام ہے، بٹ کوئن ہوائی ڈیجیٹل کرنسی ہے، بالکل حرام ہے. بٹ کوئن کوئی نہیں ہے، یہ ہوائی کرنسی ہے. فارکس میں ہم ڈائمنڈ خریدتے ہیں، پیٹرول خریدتے ہیں. توجہ سے بیٹھ جاؤ، آپ کی اہم کلاس ہے. دماغ سے چکر نکالو، اثر نکالو. آپ نے ڈیزل خریدا، ڈائمنڈ خریدا، پیٹرول خریدا. تم کہو کہاں ہے؟ تو ویڈیو بھیجو. میں نے جو پیٹرول خریدا ہے کہاں ہے؟ میں جو ڈیزل خریدا ہے کہاں ہے؟ مجھے بھیجو. اتنے بیرل نہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے 10 بیرل پیٹرول خریدا ہوا میں اور پیسے دے دیے. عالمی منڈی میں پیٹرول کا ریٹ اوپر ہو گیا، ڈیزل کا ریٹ اوپر ہو گیا، وہ مجھے پیسے دیتے ہیں. نیچے آ گیا، میرے پیسے کم ہو گئے. یہ ہوائی جوا ہے، حقیقت اس میں نہیں ہے. فارکس میں بٹ کوئن ہوائی ڈیجیٹل کرنسی ہے، حقیقت اس کی نہیں ہے. یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ناراض نہ ہونا، گناہگار ہوتے ہیں اور کلاس پڑھاتے ہیں. اصل میں یہ اور تبلیغی ایک کام کرتے اور تبلیغی اور یہ جو نا دیکھو تو مفتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے. تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے. جی مولوی اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ہم نے AA میں PhD کی ہے، اسلام اکنامکس کی ہے، پولیٹیکل سائنس کی ہے. کیوں ہم نہیں سمجھتے؟ تم کون ہو؟ حرام ہے، بی فار یو ہے. اچھا بہت سارے ایسے جنا آن لائن لوگ پیسے کماتے ہیں، ٹری بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ توجہ سے تم آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، انٹر ہو جاؤ. آپ 35,000 روپے دے دیں یا 2,500 روپے. آپ 2 لائے 2، 4 لائے 4، 8 لائے 8، 16 لائے 16، 32 لائے 32، 64 لائے. لاتے تو بعد والوں کا کمیشن اس کو ملتا ہے. حرام ہے، ناجائز ہے. جو آدمی آپ لے گئے اس کا کمیشن آپ لے سکتے ہیں، لیکن باقی جو نا آپ سلیپنگ پارٹنر بن گئے ان کے کمیشن آپ نہیں لے سکتے ہیں. لیکن یہ دوسری وجہ سے بھی حرام ہے. نہا ظلم ان بیع و شرط، حضور نے بے اور شرط سے منع فرمایا. یہاں بے کیا ہے پتہ؟ جو چیز وہ لے رہے ہیں نا، تھوڑی چیزیں دیتے ہیں. وہ دوائی کی چیزیں ہوتے ہیں، کاسمیٹک کی چیزیں ہوتے ہیں، میک اپ کی چیزیں ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں. یہ ایسے رکھا ہوا ہے. تو حضور نے اس بے سے منع فرمایا ہے. اس میں مقصد یاد رکھو، وہ چیزیں نہیں ہوتی جو 35,000 کی یا 10,000 کی آپ نے لے لی. اس میں مقصد وہ ٹری ہوتا ہے کہ میں اور افراد لاؤں گا، میری ٹیم اور افراد لائیں گے تو مجھے پیسے ملیں گے. تو اس میں مقصد کیا ہے؟ کمیشن. توجہ سے بیٹھ جاؤ. کیا ہے؟ کمیشن ہے. اس میں جو مقصد کمیشن ہے، تو یہ کمیشن کے چکر میں پیسے دے دیے، کچھ چیزیں لے لی. اب ٹری بنا رہا ہے، افراد لا رہا ہے، حرام ہے. اس لیے کہ تب میں ایک آدمی کو لے گیا، وہ موبائل خرید رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، اور وہ جو دکاندار ہے، توجہ چاہیے، کمیشن کب جائز ہے؟ وہ دکاندار اپنے ریٹ پر دے دے جس طرح وہ دیتا ہے. اس دکاندار نے مجھے بھی کچھ پیسے دے دیے تو جائز ہے. کیوں؟ اپنے جیب سے دیے. یہ موبائل کتنے کی ہے؟ یہ موبائل جو ہے یہ کتنے کی ہے؟ مثلا 10,000 کی ہے. ہمیشہ 10,000 کی یہ بکتی ہے. وہ 10,000 کا بیچتا ہے یا 9,000، وہ دکاندار مجھے کچھ دیتا ہے تو یہ حلال ہے، جائز ہے. اس نے اپنے جیب سے مجھے دیے. ہر ایک پر بیچتا ہے 9,000 10,000. جب میں آدمی لے گیا تو اس پر 11,000 کا بیچ دیا، مجھے 1,000 دے دیے تو یہ حرام ہے. یہ گاہک کے جیب سے نکال دیے، یہ حرام ہے. لیکن اگر گاہک کہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، آپ کو اس نے جو دیے گویا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، تو پھر تو جائز ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں مقصد کمیشن ہے. مقصد کیا ہے؟ تو جو میں ایک آدمی لے گیا اور پھر وہی آدمی بار بار ایک اور آدمی کو لے رہا ہے، پھر وہ تو ان کا کمیشن کسی کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. وہ تو چلا گیا. جو لاتا ہے وہی کمیشن لیتا ہے، وہ جائز ہے. یہاں جو شرط قرار دی، مقصد کمیشن ہے. خرید و فروخت کمیشن کی ہے، مقصد کمیشن ہے، اور اس کے شرط یہ اتنے پیسے داخل کرو. تو یہ شرط اور بے سے حضور نے منع منے کا نہیں. جس پروگرام میں ٹری بناتے ہیں حرام ہے. کیوں؟ نہا رسول ان بیع و شرط.
तो स्लीपिंग पार्टनर भी क्या कमीशन लेता है और ये ट्री बनाते हैं, और जब ये चीज बंद हो जाती है, जिस तरह बंद हो, बिजनेस बंद हो गया, स्काई बिज बंद हो गया, सबसे पहले स्काई बिज था, फिर बिजनेस था, फिर शैनल कंपनी था, फिर टाइम्स थे, सारे उड़ गए। हम उसके खिलाफ फतवे देते थे, लोग नहीं मानते थे, लोग गर्क हो गए। अब इस तरह बैठ जाओ, करते जाओ। तो ये हराम है। मैंने दो वजह से, बे और शर्त है, और एक स्लीपिंग पार्टनर को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, वो अगर उसकी टीम तेज हो तब। अगली बात है, खबरदार को ये न कहे कि मौलवी इसको नहीं जानते। आराम से बैठ जाओ, तू जानता है। एक आदमी आया, आप लोग जानते नहीं, फतवे देते हैं। मैंने कहा शराकत की कितनी किस्में हैं, मुदारबत और शराकत में क्या फर्क है? शराकत की 4 किस्में हैं, बताओ। कि मुझे नाम भी मुझे मालूम नहीं, निकलो, पता ही कुछ नहीं। ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है। आप तो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। इसमें बड़े दीनदार लोग हैं, अगर कोई तबलीगी सीधा साधा आदमी उसमें दाखिल हो गया, ये इंडोनेशिया से फतवा है, सऊदी अरब से फतवा है, जामे अजहर से फतवा है, यहाँ के सारे मुफ्ती मर गए। बादौकत के दारुल कराची से फतवा है, तवज्जो बिनोडन से फतवा है, उसमें होते अगर 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 मतलब ये कि बिनोडन और दारुल कराची वालों को पता नहीं है, इसलिए अगर अगर कर रहे हैं जामे बिन नूरिया वाले। ऐसे फतवे मौजूद है। अगर अगर ये है, अगर अगर ये है, तो ये जायज है। ये कोई अगर अगर क्या होता है? लोगों को गर्क कर दिया आपने। इसकी स्टडी करो इस चीज की, फिर कहो ये हराम है। अगर अगर करोगे लोग गलत फायदा। लोग मुझे फतवे भेज रहे हैं, दारुल कराची से फतवा है, जामे बिन नूरिया से फतवा है। फतवा को देखता हूं, अगर ये अगर ये है, अगर ये है तो ये जायज है। गलत फतवा है। उसकी सही मैं क्या करता हूं, नई चीज आती है, मैं क्या करता हूं, ये बात मैं मुफ्तियों के लिए बतला रहा हूं। नई चीज आ गई, मसलन बिटकॉइन आ गया, तो मैं उसका शरीय हुक्म कैसे बताता हूं लोगों को? मैं पहले वेबसाइट्स देखता हूं। B4U आया ना, किसी ने हुक्म नहीं लिखा था, न दारुल कराची ने, बिनोर टाउन ने, न देवबंद, क्योंकि अचानक आ गई। तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी यूट्यूब पर सर्च किया बिटकॉइन के बारे में, देखा और खूब हर तरफ से। फिर गूगल के अंदर सर्च किया, फिर मैं समझ गया क्या करते हैं। फिर मैंने कहा ये हराम है। क्यों? मैंने वजूहत सबने पर लिख लिया। सबसे पहले मेरी इस पर वीडियो है, चैनल पर सबसे पहले मेरी वीडियो है, मेरा फतवा है। वीडियो उस वक्त नहीं थी, मेरा फतवा है। तो जवाब ये कि हर बात को समझा करो। आजकल ये मुख्तलिफ खेल निकल रहा है, क्या लूडो खेल और गेम, 1xbet, बहुत सारे गेम, बहुत सारे खेल निकले हैं, उस पर पैसे मिलते हैं। हराम है, जुआ है, नाजायज है, गुनाह है। क्यों गलत काम करते हो? इसमें जो ना ये है और वो है, और ये जो हमारे बड़े बड़े टिकटॉकर है हराम खाने वाले, वो कहते ये जो करो ये बड़ा फायदा होगा। पठान भी और दीगर भी। भाई मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह से डरो। एक टिकटॉकर हो, पठान हो, गैर पठान हो, जब आप किसी चीज पर कोई वीडियो बनाएं तो आप गूगल में जाकर आप सर्च करें बिनोर टाउन, दारुल कराची, देवबंद, चलो अल मुहद्दिस भी सर्च करो। ये हलाल हराम के लिए वो ज्यादा सख्त होता है, ये हदीस का है। तो फिर आगे जाकर आप करें ना, हुक्म लगाएं। आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो अपने आप को जहन्नम में पहुंचाते हो। अल्लाह ताला मुझे और आप हजरात को हराम से बचाए। हदीस एक सुनाता हूं, याती अलन्नास ज़मानुन, अनकरीब लोगों पर ऐसा जमाना आने वाला है, या ला युबालिल मर, आदमी परवाह नहीं करेगा अमिल हलाल अखज़ अम हराम, हलाल खा रहा है या हराम खा रहा है, बस खाएगा। हराम में ज्यादा पैसे आते हैं, प्राइस बॉन्ड्स का इनाम हराम है। इस पर मेरी वीडियो है, 3 वजहों से हराम है। इस पर मेरी वीडियो है, देखो मेरे चैनल पर। तो एक और हदीस है, अल हराम बैयिन, अल हराम बैयिन, हराम वाज़े, उससे बचो। वल हलाल बैयिन, ये दो पहली हदीस मुस्लिम की, ये भी मुस्लिम की है। वल हलाल बैयिन, और हलाल वाज़े है, उसको ले लो। व बैनहुमा उमूर मुश्तबिहात या मुश्तबहात, दोनों ठीक है। इसके दरमियान में कुछ है कि हलाल है हराम है, जायज ना जायज। कोई मौलवी कहता है हलाल है, कोई कहता है हराम है। जैसे मुजारबत के मौलवी ने पैसे खा लिए, मैंने आपको मना किया था, तो हमारे इलाके वाले रिश्तेदार सारे बच गए। तो ये बैनहुमा उमूर मुश्तबिहात, बाद ऐसे उमूर होते जिसमें शुबह में आदमी चला जाता है कि हलाल है हराम है। बाज मौलवी कहते हैं हलाल है, बाज मौलवी कहते हैं हराम है। तो हम किसकी बात माने? जो मौलवी कहते हैं हराम है, आप उसकी बात माने। क्यों? फमन इत्तक़ा शुबहात ला यअलमुहा कसीरुन मिनन नास, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग शेयर जायज है 4 शरायत के साथ, शेयर जायज है स्टॉक एक्सचेंज में 4 शरायत के साथ। एक मौलवी ने कहा ये हराम है। मैंने कहा उस्ताद जी कैसे हराम है? कह रहे इंग्लिश का लफ्ज है तो हराम है। मैंने कहा हर इंग्लिश का लफ्ज हराम नहीं होता है। तो ला यअलमुहा कसीरुन मिनन नास,
बहुत सारे लोग मुश्तबिहात को नहीं जानते हैं, लिहाजा बहुत सारे लोग लिहाजा आपने इस तरह करना है कि आपने शुबे से ही बचना है। फमन इत्तक़ा शुबहात, जो शुबहात से ही बचा, फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही, वो उसका दीन भी महफूज हो गया, उसकी इज्जत भी महफूज हो गई। मैं आपको कहता हूँ, ईशा की नमाज से आप निकल गए बाहर, दो साथी हैं, तवज्जो से सुनो, हराम से बचो। अगर कोई आपको कहे ये हलाल है, फिर भी उस हराम से बचो जब बड़े बड़े उलमा आपको कहते हैं कि ये हराम है। दालिफ्ता वाले, सारे दालिफ्ता वाले बुजुर्ग फरमाते हैं, हमारे वो असातिज़ा, कि हराम है, तो बचो इससे। आप ईशा की नमाज के बाद निकल गए, आप दो आदमी हैं, आप एक रास्ते पर जा रहे हैं, वहां लड़के 10 लड़के सिगरेट पी रहे हैं, बोलो, आप निकल गए, आप जा रहे हैं फलानी जगह पर, 2 रास्ते हैं, आपको किसी ने कहा इस रास्ते से चले जाओ, तवज्जो सुनो, आखिरी बात, आप उस रास्ते से जाने वाले हैं, नमाज से आप निकले, जो नमाज से निकल गए उन्होंने आपको कहा आप जा सकते हैं। वहां लड़के खड़े, उन्होंने नमाज भी नहीं पढ़ी है, सिगरेट भी पी रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस रास्ते से मत जाओ, वहां डाकू खड़े हैं और उन्हें मोबाइल भी छीना है, मोटरसाइकिल भी छीना है, तो वहां से मत जाओ। आप मुझे बताएं, बोलो तुम उस रास्ते से जाओगे? उन्होंने तो नमाज नहीं पढ़ी है, सिगरेट पीते हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? आप इसलिए नहीं जाएंगे, हो सकता है ये सच्चे हों और हमारा मोबाइल और मोटरसाइकिल हमसे कोई छीन न दे, तो आप नमाजियों की बात नहीं मानेंगे और आप उन लफंगों की बात मानेंगे। आपको अपने ईमान और हलाल हराम की फिक्र नहीं है। जब 2 आदमी कहते हैं हलाल है और 2 कहते हैं हराम है, तो आपने बचना है। अल्लाह हम सबको गुनाहों से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हराम माल से हमको महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Pasa.